Good afternoon, students. I believe other day all of you have seen videos of trigonometric formulas. Uh, there are a lot of formulas, no doubt, but if you remember those basics like sine 2a, sine 3a, got it? Sine a plus b, sine a minus b, then sine a plus b into sine a minus b. There are a lot of formula. I agreed that part. But see, when we are solving couple of sums, we will come to know those formulas, their importance. So if you remember those formulas also, that would be sufficient. Look at this. There is one question. All the formula we have already done. So let's say we have one problem. It is sine square 15 degree plus sine square. These sums came in CDS. Sine square 30, fine, plus sine square 45. This is sine square 45 degree plus sine square 60, sine square 60 plus sine square 75. Suppose we have to find the value of this. So in this we know sine 30 you know, sine 45 you know, sine 60 you know. The thing is sine square 45 and sine square 75 we have to calculate. So rather going for sine 15 degree, what we will do, we'll change sine square to cos square. So can we write cos square 75 to this? How? We know that sine 15 we can write 90 minus 75. For sine 15 we can write, and then we have a whole square for this. Now when we have sine 90 minus theta, what it comes? Cos theta. This becomes cos square 75 degree, correct? So in place of sine square 15, we have written cos square 75. Sine square 30, 1 by 2 square. Sine square 45, 1 by root 2 square. Sine square 30, root 3 by 2, that is 3 by 4. And this is sine square 75. We'll keep as it is as. Now sine square 75 and cos square 75 becomes 1. 1 plus 1 by 4 plus 1 by 2 plus 3 by 4. Now you take LCM and simplify. This is going to be 4, 4, 1, 2, 3. And this is what it will come, 10 by 4, and which is nothing but 2.5. This is going to be the answer. This problem came in CDS dear. So, you know, the basic idea. Again, important is how much time you are taking to get the answer of this problem. So we have one methodology we have used here, which is sine 90 minus theta concept, correct? So presence of mind and your run time, what you are thinking, so that, see, sine 15 you can go with this way also, 45 minus 30. But it's again a lengthy process. Fine. Even sine 75 also you can get 45 plus 30 degree. Fine. We have formula sine A cos B, sine A cos B minus cos A into sine B. Fine. This way we can calculate. But no need to do this way. Correct? Because once we came to know that sine square 15 is there and sine square 75. So change it one of them. And we have sine square theta plus cos square theta. That all of you know, which is 1. Sine square theta plus cos square theta. This is 1. Correct? So this methodology will be the fastest and simplest way. Here it will take lot of time. So don't prefer this way. Don't go for calculating the sine 15 as well as sine 75. It is a wastage of time then. Now, I believe you understood this problem, correct? Now look at the second problem there.
See, everywhere the nature of problems, how much sums you will, you will simplify, you will find confidence there. Look at the next problem I am taking. This is going to be, the question is cos 20 degree minus cos 70 degree upon sin 70 and minus sin 20 degree. Find this value we are looking. Options are given 1 by 2, 1, 2, 1 by root 2. These are the options. So other day we have seen the formula. What are those formula? We have seen cos C minus cos D, factorization formula. The fourth one, 2 sine C plus D by 2 into sine D minus C by 2. Also we have seen in factorization formula sine C minus sine D. Correct? That is 2 cos C plus D by 2 into sine C minus D by 2. So with the help of these two formula, now we will use here. Correct? So 2 sine, this is your C and this is your D. C and D. 2 sine C plus D by 2, 20 plus 70 by 2 into sine D minus C by 2 upon, we'll go second formula, sin C minus sin D, which is nothing but 2 cos C plus D by 2, correct, into sine C minus D by 2. Fine. So what it looks, this and this term get cancelled, sine and sine, 2 and 2. Sine 90 by 2, that is sine 45, sine 45 upon cos 45. This is nothing but tan 45 and this is nothing but 1. So 1 is the correct option. So again the importance of formula there. And these sums, it comes in CDS. So you cannot deny, no sir, I won't be able to learn this formula. अगर if you remember 4 factorization होते हैं, 4 defactorization, कम से कम factorization तो 4 याद रखिए, so that ऐसे सम surely आप कर पाएंगे एग्जाम में. And those are simple, not so difficult. Correct? Now look at this. Another situation. Suppose we have to calculate the value. This also came in sin CDS. Sin 79, fine, into cos 11 plus cos 79 into sin 11 degree. Although you know 79 and 11, you don't know the value, but it comes in a formula. Suppose this is A, this is B. So which formula it looks? Sin A cos B plus this is A and this is B, cos A sin B. Correct? So this we can write sin A plus B. Correct? This is our formula, compound angle. The first result sin A plus B. So this entire question now it shrink. ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगी? 79 प्लस 11 डिग्री. ठीक है? And which is nothing but sin 90 degree. And all of you know sin 90 is 1. So 1 is the correct option. Correct here? So again the question is formula sin A plus B. If you remember, you will be able to do it. Correct? Now look at the next situation. Suppose we have there, question it is,
अगेन द मल्टीपल और सब मल्टीपल बेस्ड पे क्वेश्चन ले सकते हैं हम, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलाज हमने किया है उस बेस पे हम प्रॉब्लम को ले सकते हैं। लुक एट दिस वन मोर प्रॉब्लम। सी वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ cos 780 degree. You have seen in the other video how to calculate such value. आप क्या करते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 लेते हो, यानी 90 से इसको आप रफ में डिवाइड करो 780 को। 99 जा 810, ये आ गया -30 डिग्री। तो हमने फॉर्मेट देखा है ऑलरेडी वीडियो में कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री -30 डिग्री, प्लस और माइनस दोनों का ही फॉर्म था, तो कॉस किस में चेंज हो जाती है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप में क्या देखते हैं, ये एंगल कहाँ लाइज कर रही है। सो दिस इज लाइंग 4, 8 और ये 9, ठीक है। 9 माइनस, तो इट कम्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। And all of you know the sign convention, all, sine, tan and cos. All means all trigonometric ratios are positive in first quadrant. So ये first quadrant पे आ रहा है 1/2, so it will be positive 1/2. So cos 780 degree is positive 1/2. Fine. इस तरह के प्रॉब्लम आपने फॉर्मूला में देखा ही है कल, ठीक है। रिजल्ट को आपने देखा है कल, सारे फॉर्मूलाज n π/2 प्लस माइनस थीटा, ऐसे क्वेश्चन। आइए एक और सिचुएशन देखते हैं। आजकल सीडीएस में इस तरह का प्रॉब्लम शुरू हो गया आना डियर। लुक एट दिस। थोड़े ट्रिग्नोमेट्री में स्मार्ट रहेंगे तो इट विल श्योरली हेल्प यू टू स्कोर मैक्सिमम इन योर सीडीएस। सी वन सिचुएशन, इट इज cos 90 plus theta, then sec minus theta. See, if you have seen yesterday's video, then only you will understand all these questions. अगर आपको फिर से देखना है तो उस वीडियो सबको वीडियो देखिए और देन यू कैन गो फॉर दिस वीडियो, बिकॉज वहाँ सारे रिजल्ट फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे सॉल्व करते सारे रिजल्ट लिखूंगा। sec 360 minus theta into sine 180 plus theta into cot 90 minus theta। ये वैल्यू हमें चाहिए, ऑप्शंस दिए हुए हैं 0, 1, -1, 0, 1, -1, 2। These are 4 options. So fine, 90 plus theta का केस हो तो cos किस में चेंज हो जाता है, साइन में। So it becomes sin theta। क्वाड्रेंट में आप कहाँ पहुँचोगे, 90 plus this सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट पे cos क्या होती है डियर, माइनस, इनटू सेक माइनस थीटा, पॉजिटिव सेक थीटा, करेक्ट। कॉस और सेक का माइनस क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, एंड सेक माइनस थीटा दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव सेक थीटा। बट इन दोनों को छोड़ा तो सभी के माइनस बाहर आ जाते हैं। लेट्स से साइन माइनस थीटा, यू हैव माइनस साइन थीटा, ठीक है। बाकी 4 हैं जितने, उनके माइनस बाहर आ जाते हैं और कॉस और सेक माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है। तो इसलिए भी इस कॉस थीटा और साइन थीटा को इवन फंक्शन भी कहते हैं। फाइन। सो सेक माइनस थीटा इज पॉजिटिव सेक थीटा। 180 के केस में आपने क्या देखा, देयर इज नो चेंज, टैन रिमेन्स टैन, टैन थीटा हो गया। 180 के साथ इवन और दोनों मल्टीपल चलता है। क्वाड्रेंट में देखिए आप तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में वापस गिर रहा है और टैन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, डिनोमिनेटर में आते हैं। सेक 2 × 180 यानी 180 का केस है तो सेक रिमेन सेक, दैट इज सेक थीटा।
क्वाड्रेंट देखिए 360 यहाँ है, माइनस हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो सेक इज पॉजिटिव। नेक्स्ट साइन 180 का केस है, 180 में रिमेन साइन, साइन रिमेन साइन, साइन थीटा। क्वाड्रेंट देखिए 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होगा, नेगेटिव, सो पुट अ माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज tan थीटा, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, cot 90 minus theta is tan theta. Now see what exactly left at the end. Sec, sec, sin, sin, tan, tan. So left with -1. Correct? तो ये जो 90 प्लस थीटा 180 वाला केस था, आपने अदर वीडियो में अगर देखा है तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 90 वाले केस में हमने क्या डिस्कस किया था, n π/2 प्लस माइनस थीटा, वेयर n क्या होना चाहिए, ऑड, n इज ऑलवेज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और n पाई के केस में हमने क्या डिस्कस किया था, n इज इवन या ऑड, पाई का मतलब 180 डिग्री, इवन या ऑड लेते हैं। इस केस में क्या होता, साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, बट n पाई के केस में नो चेंज, साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस। यू हैव सीन इन दिस प्रॉब्लम, साइन 180 प्लस थीटा, साइन ही थीटा रह गया, 180 का केस है। और क्वाड्रेंट में देखेंगे कहाँ पे ये एंगल लाई करती है, तो वो थर्ड पे लाई की, इसलिए ये माइनस हो गया। आई बिलीव यू अंडरस्टूड। इसलिए आज के वीडियो को देखने के पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कल वाली वीडियो सारे अच्छे से देखें, और अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क, सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस और दैट। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, लुक एट दिस। एक हमारे पास प्रॉब्लम है, question it is, we have if sin x is equal to 3/5, then cos 2x is, cos 2x क्या हुई, ठीक है, sin x कितनी दी हुई है 3/5, then cos 2x will be what, ठीक है। तो हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ साइन, अब कल के वीडियो में देखे होंगे आप, विच इज 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x। कैसे आया था ये भी मैंने कल आपको बताया वीडियो में, ठीक है। देख लें एक बार फिर से, वापस रिकैप कर दूं कि कैसे ये हुआ। बेसिकली ये आ गया cos x प्लस वाई, इसकी फॉर्मूला होती है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। अब इस y के जगह पे अगर इफ आई पुट इन प्लेस ऑफ y x, so what it becomes, cos 2x, and this side it is going to be cos square x minus sin square x, फाइन। अब मैं इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर वी कैन राइट, बेसिक फॉर्मूला, एंड दिस इज minus sin square x, so this becomes 1 minus 2 sin square x, correct। So cos 2x is nothing but 1 minus 2 sin square x, correct, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया। तो अब तो वैल्यू cos 2x की निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम देखिए cos 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। So this is
cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कितना है डियर 3/5, इसका होल स्क्वायर, which is 1 into 18/25 and this is nothing but 7/25. This is going to be the answer. ठीक है, cos 2x क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज द फॉर्मूला. साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, दैट वी सब्स्टिट्यूटेड 1 माइनस 9 to the 18/25 and 7/25 is the correct answer. ठीक है, साइन एक्स 3/5 था तो cos 2x we have calculated. ठीक है, और मैंने ये फॉर्मूला भी आपको दिखा के दिया, अगर आप कल वीडियो देखे हैं तो आप उसमें भी समझ चुके हैं. एंड आई अगेन एलॉबरेटेड दिस फॉर्मूला. ठीक है डियर, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्री में यू रिक्वायर अ वेरी गुड कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला. फॉर्मूला क्लियर होता जाएगा, एवरीथिंग विल गेट क्लियर. नाउ वन मोर सम. इफ tan x equals to 3/4, fine, then sin 2x is, what is the value of sin 2x? Correct, sin 2x की वैल्यू क्या होगी? तो डियर हमें sin 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan पता है. sin 2x in terms of tan, which is 2 tan x upon 1 plus tan square x. ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ sin 2x. sin 2x की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan ये होती है. तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो आप वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. लुक एट दिस. सो व्हाट इज गोइंग टू बी हियर, sin 2x is equals to 2 into tan x is 3/4, 3/4 upon 1 plus 9/60, 3/4 का होल स्क्वायर. So this is 3/2, 16 upon 25, and that is nothing but 24/25. Clear? So again sin 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan x upon 1 plus tan square x. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे याद नहीं है sin 2x का फॉर्मूला कैसे बना. तो ये मैं फिर से आपको ले जाऊंगा. sin 2x का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था विच इज 2 sin x इंटू cos x, ये आता है. और sin 2x कहाँ से आता है, तो sin x प्लस वाई अगर लिखें, इसका फॉर्मूला क्या है sin x cos y प्लस cos x sin y. अब इस y की जगह x डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा sin 2x sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू sin x, which means 2 times of sin x into cos x. Fine. So sin 2x this way it came. From where it came, sin x plus y से आया. यहाँ पे y की जगह हमने x डाल दिया. ये sin 2x sin x cos x plus cos x sin x, 2 sin x cos x. अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है. ठीक है, 1 को आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भी लिख सकते हो. 2 sin x cos x. 1 के लिए मैंने क्या किया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिख दिया. करेक्ट. अब मैं क्या करूँगा डियर, cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूँगा. देन व्हाट विल हैपन, 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x.
सी ये मैं सारी प्रैक्टिसेस फॉर्मूला कराते समय किया है। ये इतने काम आपको बच जाएगा अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला साइन 2x का 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x याद रखते हो, बट स्टिल विल हैव टू गेट द फॉर्मूला। फॉर्मूला निकाल रहे हैं एक बार फिर से। सो 1 cos and 1 cos get cancelled, so that become 2 tan x, और इसको सेपरेट करोगे तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x इन टर्म्स ऑफ tan, और हमने ये फॉर्मूला का यूज अपने सम में किया। tan x दी हुई थी 3/4, देन यू हैव टू फाइंड साइन 2x। आप एक ऐसे भी कर सकते थे, tan x 3/4 है, 3/4, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। दिस इज एंगल x, दिस इज 3, दिस इज 4, ये क्या आ गया डियर 5। अब साइन 2x का फॉर्मूला लिख लो, साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 इंटू यहाँ से साइन x क्या मिलेगा अपने को 3/5, what you will get cos x 4/5, and what is going to be the answer? The answer is same 24/25, ठीक है। सो इट्स योर कॉल कि आप कैसे सम को हैंडल करते हैं, कितने फॉर्मूला में यू आर वेल वर्स्ड, फॉर्मूला आपके कितने कंट्रोल में है। फाइन। So you have seen in one sum there are various ways to get the answer. Fine dear. Now we are moving to our next problem. Look at this. Sin 2x in terms of tan up में देखिए। अब dear यहाँ पे क्वेश्चन है, if cos x is equal to 4/5, then the value of tan 2x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। cos x is 4/5, तो tan 2x क्या होगा? तो पहली बात, tan 2x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ tan 2x। नाउ क्वेश्चन कम्स, कैसे आया? तो ये आया tan x प्लस y वाले फॉर्मूले से, विच इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x into tan y. Put in place of y x. So this is going to be tan 2x, and here it is tan x plus tan x, 2 times of tan x, and in denominator tan x into tan x, 1 minus tan square x. Fine. So tan 2x is 2 tan x upon 1 minus tan square x, ठीक है। तो हमारे पास cos x है, तो हम यहाँ से tan x निकाल सकते हैं। How you can get it? Make a right angle triangle. This is 90, this is angle x, base is 4, hypotenuse is 5, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो tan x क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4 इस ट्राइंगल से। So cos x is 4/5, so tan x came 3/4. Now we will use this formula because tan 2x we are looking. So tan 2x is nothing but 2 into tan x 3/4 upon 1 minus 9/60. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3/2 into 16 upon 7, which is nothing but 24 upon 7. Right? So I believe
आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है? फॉर्मूला का इम्पोर्टेंस है डियर, इफ़ यू नो द फॉर्मूलाज, क्योंकि ये नीड है, इस तरह के सम सीडीएस में पूछे जाते हैं, करेक्ट? तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए फॉर्मूलाज में, करेक्ट? लुक एट दिस, रिसेंटली 2019 या 20 में मेरे ख्याल से एक सम आया था डियर ट्रिग्नोमेट्री में, दैट विल डू, देखिए 19 आई थिंक 2018 या 19 में था ये सम, करेक्ट? वो सम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, कि आपको किस तरह के फॉर्मेट दिमाग में रखने हैं, कैसे सम आते हैं। फाइन, सो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखो दिस क्वेश्चन केम इन 2019 CDS. The question is, and it is very simple dear, tan 30 plus tan 60 upon 1 minus tan 30 into tan 60. आई बिलीव अब तक आपको आंसर आ चुका होगा। आप डायरेक्ट इसको क्या लिख दोगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला 30 प्लस 60, क्योंकि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, एंड tan 90 क्या होती है, इन्फिनिटी, ऑप्शन में इन्फिनिटी भी दी हुई है। फाइन, सो दिस वे लुक एट द लेवल ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कम्स इन योर एनडी। या तो फिर आप tan 30 tan 60 की वैल्यू भी डाल सकते हो। Fine. Now we'll move to our next problem. Look at this. Next sum I am taking, if sin x equals to 1 by 3, then the value of what? Sin 3x. Sin 3x की वैल्यू चाहिए। फाइन, sin 3x की वैल्यू चाहिए और sin x 1 by 3 है। सो हमने डियर sin 3x का फॉर्मूला किया है, वो था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है? जो मैंने बोला था, आप sin 3x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x जरूर याद रखिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये सम जरूर कर लेंगे, ये भी CDS में आई हुई प्रॉब्लम है। सो नाउ पुट द वैल्यू, 3 इंटू 1 by 3 माइनस 4 इंटू 1 by 3 होल क्यूब, साइन क्यू एक्स है ये, सो वैल्यू विल बी 1 माइनस 4 अपॉन 27, ये आ गया डियर 23/27, ठीक है? सो sin x 1 by 3 है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ sin 3x विद द हेल्प ऑफ sin 3x फॉर्मूला, 3 sin x माइनस 4 sin qx, ठीक है डियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। फॉर्मूला याद रखना है उसमें। इसी तरह एक क्वेश्चन इसमें भी बनाई जा सकती है, cos 3x का फॉर्मूला भी पता है अपने को, if cos x is equal to 1 by 2, then the value of cos 3x चाहिए। So dear, we know cos 3x formula in terms of x, which is 4 cos cube x minus 3 cos x। आप कल वाले वीडियो में, जिस वीडियो को मैंने बोला था 2 बार देखो, उनमें इन सब फॉर्मूलाज को मैंने एलोबरेट भी किया है और इनको आप याद रखेंगे। सो नाउ यहाँ से देखते हैं cos x 1 by 2 है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू,
1/2 whole cube minus 3 into 1/2, which is nothing but 4/8 minus 3/2. Take LCM, this is 8 minus 6 and this is minus 2/8, and finally we have minus, how much it came, 8 ना, 4/8 is 8 here, 4 3 जा 12 आ जाएगा, ये 2 4 जाए ना, ये 12 हो जाएगा. This is minus 8/8, which is 1. Correct? So this is the answer. If cos x is 1/2, then cos 3x will be minus 1. Correct? This is your answer. Fine. So now we should go ahead. आगे बढ़ते हैं. आगे हम देखते हैं और किस तरह के प्रॉब्लम आने वाले हैं हमारे CDS में. देयर थोड़े से सिंसियर एफर्ट लगाइए. CDS की मैथमेटिक्स आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. थोड़े से साइंस में, साइंस की स्ट्रीम के बच्चे तो अच्छा करते ही हैं. इवन जो कॉमर्स साइंस के हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो भी कर सकते हैं अच्छे से. थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है. नाउ नेक्स्ट सम इज इफ cos x is equal to 3/4, then the value of sin x/2, sin x/2 की वैल्यू चाहिए. cos x की क्या दी हुई है, 3/4. तब मुझे sin x/2 चाहिए. ठीक है. तो हमने कल एक रिजल्ट में हमने आपको एक वर्ड यूज किया था, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन फॉर्मूला. ठीक है. इसके दो फॉर्मूला थे. 1 माइनस cos x वो होता है बेसिकली 2 sin स्क्वायर x/2. इसके एक और रिजल्ट है. ऑक्सीजन में दो रिजल्ट है, 1 माइनस एंड 1 प्लस cos, and 1 plus cos x. This is equal to 2 cos square x/2. ठीक है. इसमें मैंने एंगल जब बढ़ाया था तो आप उस तरह लिखते जाते थे. 1 माइनस cos अगर 2x है तो आप क्या लिखते थे, 2 sin स्क्वायर x लिखते हैं. ठीक है ना. यहाँ का एंगल इधर आके हाफ हो जाता है. यहाँ देखो x है तो यहाँ आके x/2. 1 प्लस cos 2x, दिस इज 2 cos स्क्वायर x. फाइन. इसी तरीके से एंगल का बढ़ते जाएगा और राइट हैंड साइड उसका हाफ होता जाता है. सो दीज आर ऑक्सीजन फॉर्मूला, जिसमें आप केवल दो ही याद रखें तो यू कैन नो n नंबर ऑफ फॉर्मूला. सो ये ऑक्सीजन बड़ा यूजफुल रिजल्ट है. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा कि cos x 3/4 है. करेक्ट. और चाहिए अपने को sin x/2. फाइन. तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला तो लिखा, उन्हीं में से ये फॉर्मूला में क्या दिख रहा है, 1 माइनस cos x. इसी फॉर्मूला को देखो, मॉडरेट कर रहा हूँ मैं, अपॉन 2 कीजिए और उसके ऊपर रूट डालिए. ये क्या मिलेगा, sin x/2. करेक्ट. देखिए साइन स्क्वायर है इधर, 2 पहले इधर भेजें. अब आप वैल्यू डाल दीजिए. अब 1 माइनस cos x इज 3/4/2 इज इक्वल्स टू sin x/2. तो डियर आंसर क्या हो गया, sin x/2 इज इक्वल टू √1/8, जिसको आप क्या लिखते हैं, 1/2√2. ठीक है. सो द आंसर इज sin x/2 इज 1/2√2. दिस इज द आंसर. सो cos x 3/4 हो तो आप यू कैन गेट sin x/2. अगर cos x 3/4 है तो आप cos x/2 भी निकाल सकते हो. If cos x is 3/4, you can find cos x/2 also. कैसे,
इस फॉर्मूला की हेल्प से, ये फॉर्मूला है, देख ही लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दी है, इफ cos x इक्वल्स टू, ठीक है, सपोज दिया हुआ है 3/4। सेम क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन की तरह है। देन cos x/2 चाहिए, ठीक है, cos x/2 चाहिए। दिस वी हैव टू फाइंड। ऑक्सीजन यूज कर लेंगे, पीछे हमने ऑक्सीजन दिखाया आपको। कौन सा फॉर्मूला, 1 + cos x, ये क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला यूज की जाएगी। cos x है और cos x/2 भी है दोनों रिजल्ट में। लुक एट दिस, so 1 + cos x, the formula is 2 cos square x/2. So 1 + cos x by 2 भेज दीजिए इधर, ये रह गया cos square x/2। अब स्क्वायर इधर भेज दोगे तो क्या मिल जाएगा, look at this, therefore cos x/2 is nothing but root over 1 + cos x by 2। फाइन। अब आपके पास cos x की वैल्यू क्या दी हुई है, 3/4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फाइन, दिस इज रूट ओवर 1 + 3/4 अपॉन 2। So this is nothing but √7/8, and this is nothing but √7/2√2. That is the value of cos x/2. If cos x is 3/4, the value of cos x/2 you will get √7/2√2 with the help of this formula, जिसको हमने ऑक्सीजन बोल रखा है। ऑक्सीजन आप याद रखिए, इट्स वेरी यूजफुल फॉर्मूला, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू अनदर प्रॉब्लम। आई थिंक वी हैव स्पेस हियर, कुछ स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे हम। लुक एट दिस। नाउ नेक्स्ट सम देखो, वी हैव अनदर सम which is tan A equals to 1/2 and tan B equals to 1/3। देन पूछा गया है A + B एंगल कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B, ठीक है। तो tan A और tan B की वैल्यू दी हुई है। A + B कहाँ से आएगा, अगर मैं tan A + B का फॉर्मूला ही यूज़ कर लूँ, क्योंकि इस फॉर्मूला में मुझे tan A और tan B दोनों ही दिख जाएगा। tan A + tan B अपॉन 1 - tan A इंटू tan B, करेक्ट। वैल्यूज डाल दीजिए, 1/2, 1/3, प्लस है 1 - 1/2 इंटू 1/3। हमने tan A + tan B का वैल्यू डाल दिया। ये कितना आ गया डेयर, 5/6। नीचे कितना आ गया, 1 - 1/6, दैट इज ऑल्सो 5/6। So this came 1। That means कि हमारा tan A + B, यहाँ से देखो tan A + B क्या आ गया, 1। 1 का मतलब tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan 45 1 होता है। So therefore A + B is how much, 45 डिग्री। ऑप्शन में 30, 45, 60 थी, इसका आंसर क्या हो गया डेयर, 45 डिग्री। आंसर इज 45 डिग्री।
ए प्लस बी की वैल्यू 45 आ गई। तो आपकी सोच होनी चाहिए, tan ए और tan बी दी हुई थी और एंगल ए प्लस बी चाहिए था। सो व्हाट वी हैव यूज्ड tan a plus b formula, tan a plus tan b, 1 minus tan a into tan b, और then you substitute the value, you will get the answer. ठीक है? So these sums there, it came in CDS, तो आपको अच्छे से आने चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम। आइए आगे बढ़ते हैं, we'll see another problem. Fine, look at the next problem. It is, हमसे पूछी गई है cos 105 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री इज हाउ मच, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है। वी हैव cos c प्लस cos d फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। व्हाट वाज दैट? 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 into cos c minus d by 2. This is the formula of cos c plus cos d. Factorization. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos c हमारे पास 105 है, d अपने पास 15 डिग्री है बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 105 माइनस 15 बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया। So now look at this, 2 cos 60 डिग्री into cos ये कितना हो गया 90, 90 by 2 cos 45, cos 45. So finally 2 into 1 by 2 into 1 by root 2. You know the values of cos 60, cos 45 and all. So at the end what left? 1 by root 2. This is the answer, 1 by root 2. करेक्ट? सो देखो आप छोटे छोटे क्वेश्चन में किस तरीके से cos c प्लस cos d यूज हो रहा है, cos c माइनस cos d यूज हो रही है, sin 3x, sin 2x, tan a प्लस b का फॉर्मूला। करेक्ट? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लुक एट दिस क्वेश्चन इज 4 cos cube a 15 डिग्री माइनस 3 cos 15 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अपने को ये कौन से फॉर्मूला की ओर प्रोवोक कर रहा है? दिस इज 4 cos qx माइनस 3 cos x, दिस इज नथिंग बट cos 3x का फॉर्मूला था। ठीक है ना, cos 3x ये होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ पे x जो है कितनी डिग्री दिख रही है? 15 डिग्री, यहाँ भी 15 है x। तो इस फॉर्मूला को आप क्या लिख सकते हैं? cos 3 टाइम्स ऑफ x, x क्या है? 15 है, क्योंकि cos 3x का फॉर्मूला ये होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x, and this is cos 45, and you know cos 45 is 1 by root 2. एक्यूट एंगल है, 90 से कम है तो पॉजिटिव ही होगा। फाइन डियर? तो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे सम जहाँ पे फॉर्मूला का यूज करना है उस पर आपको बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा डियर। ठीक है, आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। वी हैव अनदर प्रॉब्लम। ये बड़ा शॉर्टकट से यूज होता है, ये आप सीख लीजिए, एक शॉर्टकट है डियर। साइन थीटा साइन 60 माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा ब्रैकेट है साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। सेकेंड इज कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा। ये शॉर्टकट है जहाँ से आप इस तरह के प्रॉब्लम बना सकते हैं। cos 60 प्लस थीटा, इनकी वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ, एंड फाइनली tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan
60 plus theta. Fine. This is 1/4 into sin 3 theta. ये फॉर्मूला होता है. इसका भी फॉर्मूला 1/4 cos 3 थीटा. तो tan का क्या हो जाएगा, दोनों को अपॉन करोगे तो 1/4 कैंसिल, tan 3 थीटा लेफ्ट. ये शॉर्टकट है, इसको आपने याद रखना होगा. दीज 3 शॉर्टकट. इस शॉर्टकट से क्या होगा कि आप देखो कैसे सम्स आप बहुत जल्दी कर पाओगे. एक सम मैंने लिया, फाइन, इस शॉर्टकट के हेल्प से. आई हैव अ क्वेश्चन, साइन 10 डिग्री into sine 50 degree into sine 70 degree. We have to find the value of this, correct? Now look at this. Sine 10 को मैंने ऐसे ही छोड़ा, sine into sine 50 को क्या लिख सकते हो आप, 60 minus 10, ठीक है, into sine 70 को क्या लिख सकते हैं आप, sine 60 plus 10 डिग्री. ठीक है, तो आ गया हमारे इस फॉर्म में साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा. ये क्या हो जाता है, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा. थीटा यहाँ पे क्या है, लुक एट दिस, थीटा इज 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री. यही है ना फॉर्मूला, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, वो 3 थीटा साइन 3 थीटा हो जाता है और 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो 1/4 साइन 3 थीटा लिख दूँ मैं यहाँ पे, वो थोड़ा किचकिच दिख रहा था. सो 3 थीटा, थीटा कितनी डिग्री है डियर, 10 डिग्री. So this is 1/4 साइन 30 हो गया. साइन 30 क्या होता है, 1/2. The answer is 1/8. So this question का आंसर हमारा 1/8 आ गया with the help of this formula. ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लें इस पे, इसी फॉर्मेट पे. Look at this. एक और प्रॉब्लम है हमारे पास. साइन 20, साइन कॉस सब में हो सकता है, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 डिग्री. ठीक है, इसकी भी वैल्यू देख लो फिर. साइन 20 आपने ऐसे ही रखा जो थीटा है हमारा, इंटू साइन 40 क्या लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस 20, और 80 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 20. ठीक है, नाउ लुक एट दिस, फॉर्मूला में आ गया ये, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा. थीटा हमारा 20 डिग्री है. दिस इज 1/4 साइन 3 थीटा इज 20 डिग्री. So you know 1/4 sine 60 is how much? √3/2. So finally the answer came √3/8. Fine. एक सम tan में भी देख लीजिए. अगर tan 20, tan 40 इंटू tan 80 दी हुई है, तो वापस tan के फॉर्मेट में आएंगे आप. tan 20 इंटू 40 को आप क्या लिख देंगे, 60 माइनस 20. 80 को क्या लिख देंगे, tan 60 प्लस 20. ठीक है, 60 प्लस, दिस इज प्लस 20. तो ये थीटा है हमारा, tan थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, ये हो जाता है शॉर्टकट से tan 3 थीटा. फॉर्मूला देख लीजिए, tan 3 थीटा था, tan में क्या था, डायरेक्ट tan 3 थीटा होता है, 1/4 इसमें नहीं आता. फाइन. सो हियर वी कैन गो
This is tan 60, and all of you know the value of tan 60 is root 3. So the value of tan 20, tan 40, tan 80 is root 3. This is the answer. फाइंड है। तो आप कई शॉर्टकट्स हैं अवेलेबल, उस शॉर्टकट से हम सम को बनाते हैं, करेक्ट। इन सब जगहों पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डियर, ठीक है जी। आइए थोड़ी एक दो और सिचुएशन देख लें फटाफट। लुक एट दिस, वी हैव प्रॉब्लम। क्वेश्चन हमारे पास है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री, इसकी वैल्यू चाहिए। ऑप्शन भी लिख दूं क्या? लुक एट दिस, 3, 2, 1 and 0. These are options. Fine. Now, how we will proceed for this sum? So this is cos 20 and cos 100 and this is cos 140. चाहो तो इसमें कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, तुम इसको और इसको कंबाइन कर लो या दोनों को साथ करो, इट्स योर कॉल। अल्टीमेटली द फॉर्मूला cos c प्लस cos d यूज करना है अपने को। तो अगर आपने cos 20 प्लस cos 100 लिया, व्हाट यू हैव टेकन cos 20 प्लस cos 100, ठीक है ना। cos 140 का मतलब क्या होगा? cos 140 को आप 180 माइनस 40 लिख सकते हो, 140 डिग्री को, और जब इस मशीन में आता है तो cos रिमेन्स cos 40 बन जाएगा। बट हमें क्वाड्रेंट में देखना है ये कहाँ लाई कर रही है, सेकंड में लाई कर रहा है, तो cos यहाँ क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं इस प्लस की जगह माइनस cos 40 भी लिख सकता हूँ। फाइन। अब आते हैं हम इस दोनों में, cos c प्लस cos d लगा दें, 2 cos c प्लस d बाई 2, 20 प्लस 100 बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 20 माइनस 100, 20 माइनस 100 बाई 2, और ये माइनस cos 40 डिग्री माइनस हो गया। लुक एट दिस, 2 cos ये कितना हो गया? 60 डिग्री इंटू दिस केम cos माइनस 40 डिग्री, ठीक है, एंड माइनस cos 40 डिग्री, 20 माइनस 100 कितना हो गया? 80, 80 बाई 2। cos माइनस थीटा सबको पता है कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव थीटा और cos थीटा हो जाता है। cos माइनस थीटा इज cos थीटा, cos की नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। सो 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू cos 40, cos माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा, और ये हमारा cos 40 है। 2 and 2 गेट कैंसल, cos 40 माइनस cos 40 लेफ्ट, और ये आपको सामने से दिख रहा है कि ये क्या बचने वाला है? दिस इज नथिंग बट 0। 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इट्स योर कॉल, योर फॉर्मूला विल हेल्प यू। विच फॉर्मूला हेल्प हियर? cos c प्लस cos d। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। फाइन। इस फॉर्मूला के हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और दूसरी कौन सी रिजल्ट? cos माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा, एंड फाइनली दोज वैल्यू cos 60 क्या होती है? 1/2, and you got the final answer. So dear, इस तरह के सम में या पीछे जितने भी प्रॉब्लम्स आपने देखे, in all these sums what is important that you have to remember all the formulas of trigonometry. बेसिकली जो फॉर्मूलाज रिपीट होते हैं वो है sin 2a, cos 2a एंड फैक्टराइजेशन फॉर्मूला,
ठीक है, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, अगर मैं लिस्ट जॉट डाउन करूँ तो बड़े कॉमनली यूज फार्मूला आपके कंपाउंड एंगल पूरे साइन ए प्लस बी वाले, माइनस कॉस, कॉस वाला फार्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस, फाइन, साइन 2a, करेक्ट। So now these formulas sin 2a cos 2a, cos 2a, fine, tan 2a, ये सारे रिजल्ट, sin 3a cos 3a, ठीक है, दिस इज cos 3a। सो दिस रिजल्ट आप लर्न रखिए, tan 3a एंड फैक्टराइजेशन फार्मूला एंड डी फैक्टराइजेशन जो हमने उस कल के वीडियो में दिखाया था, फैक्टराइजेशन एंड डी फैक्टराइजेशन फार्मूलाज, ठीक है डियर। तो ये सब फार्मूला पे कंट्रोल होगा तो ट्रिग्नोमेट्री के सम्स और भी सिंपल हो जाएंगे। फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में सम मोर प्रॉब्लम विल डू फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। मीनवाइल आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को गो थ्रू कीजिए, इस प्रॉब्लम्स को गो थ्रू कीजिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, यू विल श्योरली यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस इन ट्रिग्नोमेट्री डियर। With this note, dear, thank you very much. Take yourself, take care, and good day, dear. Thank you.